So this is your file. This is your, what is the name of the, what is the name of the file? ABC. And there is some text in the file. There is some text in the file. The text of the file will always end with which keyword, which character? So this is an inbuilt character, okay, which the OS will put at the end of every file. And this is our program. The red color round rectangle is your program. So we will always look from which angle? The angle of the program. The angle of the, we will always look at it from the programmer's angle. So what is this arrow doing? Bringing the data inside the program or outside the program? Inside. So this is your file input stream. What is this? File input stream. And what is this arrow doing? Output. Taking the data from the program. So this is called as file output stream. Okay. And these are your byte streams. What are they? Byte stream. They will read the byte value. They will read the ASCII value of the character. So when I read the H, I will read the ASCII value of the H. What is it? 72. So 72 is an integer or it is a character? Integer. So that's why on the LHS you'll have which variable? Int. And then you will convert that integer to a character format. Type converting. So what is the character value of 72? What is the character value of 72? H. Capital H. Oh. And then you will get, then you will get capital H in CH, and then you can do your task. Am I understood till here? Any confusion whatsoever? No, sir. So now let's start programming. So let's start with the program. All these, so these are your classes. What are these? What is file input stream and what is file output stream? They are your inbuilt classes. What are they? Inbuilt classes. So inbuilt classes are in packages, right? So which package do you think these classes will be, going by their name? IO. Yes, they will be in IO package. So first we'll import that package. So import what? Java.io.start. Beautiful. Then we'll make a class which will be public because I'll be having the main in it. यहाँ तक समझ में आ गया? हाँ सर. तो अभी जो फाइल बनानी है, तो मैं एक नोटपैड फाइल लिख रहा हूँ. क्या लिख रहा हूँ? नोटपैड फाइल. जिसको हम रीड करेंगे प्रोग्राम के अंदर. तो ये वो नोटपैड फाइल है. इसके अंदर मैं क्या लिख रहा हूँ? Am I writing EOF? Am I writing EOF? No. EOF वो अपने आप डालेगा OS. और
ओके, कैपिटल एन का एस की वैल्यू होता है ना, हाँ कैपिटल ए का एस की वैल्यू क्या है, कैपिटल ए का एस की वैल्यू क्या है, हेलो, 65 और स्मॉल ए का कितना है, 97 ऐसे ही एंड ऑफ फाइल का एस की वैल्यू है -1, क्या है, -1 -1। तो हम लोग उसको सिर्फ इतना लिखेंगे फाइल के अंदर और फाइल को सेव कर देंगे। मैं जा रहा हूँ, फाइल को सेव पे क्लिक किया, नाउ लेट्स सेव इट, core java, let's make a new folder today by the name of file handling, and इसको मैं क्या नाम से सेव करूं, कॉलेज, क्या नाम से, college उसका, और व्हाट इज द एक्सटेंशन, .txt ठीक है, तो इसको सेव कर दिया। तो अभी मुझे रीड करना है, तो किसका बनाना पड़ेगा मुझे ऑब्जेक्ट, क्लास कौन सी है, file demo file review उसको ऑब्जेक्ट बनाया मैंने fin, क्या बनाया ऑब्जेक्ट, fn क्योंकि मैं फाइल से रीड कर रहा हूँ, new input files and which file am I reading, college.txt that will go as a file name in string format, और वो कैसे रीड करेगा, इट विल रीड द इंटीजर वैल्यू फर्स्ट, नो, yes तो इंटीजर n फिर उसको कन्वर्ट करेंगे अपन कैरेक्टर में, तो कैरेक्टर ch, ठीक है, yes ओके। दिस फाइल हैंडलिंग will always throw some type of exception, will always throw some type of exception। तो अगर ये फाइल नहीं है आपके हार्ड डिस्क पे, ये फाइल नहीं है, तो अगर आपके हार्ड डिस्क पे ये फाइल नहीं है, तो इस कोड को हम किस में लिखेंगे, किस में लिखेंगे, try में लिखेंगे ट्राई में लिखेंगे, ठीक है, ट्राई में लिखेंगे ये कोड, और उसका क्या कैच रहेगा, लेट्स टेक द एक्सेप्शन ओनली, हाँ yes exception और क्या आउटपुट देंगे उसको, system.out.println ये, ओके, लेट्स प्रिंट द ऑब्जेक्ट, नो प्रॉब्लम, yes ठीक है यहाँ तक, हाँ ओके। तो अगर बाकी भी जो हम कोड लिखेंगे वो इसके ट्राई के अंदर लिखेंगे, ताकि जो एक्सेप्शन आएगा उसको ये कैच कर लेगा, ठीक है। तो अभी हम लोग fin से डेटा रीड करेंगे, तो किस में जाएगा वो, सो व्हाट विल कम इन n, टेल मी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n नाउ, n का वैल्यू क्या है, कौन बोलेगा, n फाइल के अंदर क्या लिखा हुआ है, sir maybe 60 नहीं, व्हाट डू यू थिंक विल बी देयर इन n नाउ, द s की वैल्यू ऑफ कैपिटल n ना, हाँ तो 65 65 तो कैपिटल A का है, 65 तो कैपिटल A का है, तो हम लोग एक लूप लगाएंगे, क्या लगाएंगे, कि जब तक n इज व्हाट नॉट इक्वल टू, जब तक n क्या नहीं मिल जाता मुझे, जब तक n इज नॉट इक्वल टू -1, डू व्हाट, convert to character what, n, and store it in, ch and we will output the ch, what will we do, output correct out ठीक है,
और अभी नेक्स्ट कैरेक्टर रीड करना है, तो नेक्स्ट कैरेक्टर रीड करने के लिए वापस डाल दो इसको लूप के अंदर, ताकि लूप चलता रहे। ठीक है, समझ में आया कि नहीं समझ में आया? हाँ सर। इसका कोई ऑल्टरनेट है किसके पास लॉजिक कि सर ये दो बार क्यों लिखा है? लाइन नंबर 13 क्यों है और लाइन नंबर 18 दे आर सेम टू सेम, व्हाई ट्वाइस? तो एक बार हम लोग लूप पे एंटर करने के लिए और फिर एक बार फिर लूप को रिपीट करने के लिए बार बार। Is there any alternate logic of this? Okay, first let's save. Yes. तो अगर वो सेकेंड टाइम नहीं लिखा और उसके बाद भी हम उसको मतलब लूप में चला सकते हैं ना? मतलब कुछ अल्टरनेट कुछ तो भी रहेगा ना? किसमें? मतलब कौन से लाइन पे? लाइन नंबर 18 जो है ना, हाँ हाँ हमने वापस लिखा, लाइन नंबर 13 को हमने वापस लिखा ना, हाँ हाँ तो हम बिना लिखे कुछ तो भी अल्टरनेटिव होगा ना कि वो लूप चले। हाँ, तो वही पूछ रहा हूँ ना मैं कि ये दो बार क्यों लिखा गया है, इसको एक बार पे हम नहीं चाह सकते कि एक बार लिखने से काम नहीं हो सकता क्या? तो वो लॉजिक कौन सा लॉजिक है जो सिर्फ एक बार लिखने पर काम हो जाए हमारा? ओके, पहले इसको सेव करके रन करते, चलो पहले इसको चेक कर लेते हैं ये काम कर रहा है क्या पहले। तो फाइल डेमो, और इसको मैं सेव कर रहा हूं जाके। वेव टू और सेव जावा, और किसमें है फाइल हैंडलिंग। I'll first run it and then I'll show you the alternate logic also. दिख रहा है? हाँ। कंपाइल हुआ, क्या बोल रहा है? सेमीकोलन नहीं, इधर क्या मिसिंग है? व्हाट अ शेम, एरर भी देखो कौन सा आया, क्या है इधर, क्या नहीं है? लाइन नंबर 16 पे क्या मिसिंग है? Semicolon. The compiler should have been smart enough to put the semicolon by itself. अभी क्या बोल रहा है ये? F1 नहीं है ना, ऑब्जेक्ट का नाम क्या है? ऑब्जेक्ट का नाम क्या है? ऑब्जेक्ट का नाम क्या है? और यहाँ पर क्या कर रहे हैं हम लोग फिर? You all are just sleeping. You all are not paying attention. You all are not paying attention at all. सेव किया इसको, कंपाइल करने गए, कंपाइल हुआ, आउटपुट क्या आएगा इसका बोलो? आया? ये अलग अलग, why has it come on separate line? Why has it come on a separate line? Because we are using print ln. We should have written only print. क्या? We should have written only print. Print मतलब लाइन मत ऐड करो, सिर्फ प्रिंट करो। कंपाइल हुआ, आया? दिख रहा है? ओके, तो मैं अभी इसको करूंगा एक लाइन पे। तो ये कौन सा लूप यूज किया है मैंने? वाइल से सिमिलर एक और लूप है, कौन सा है वो? Who all are there? Let me see who all are there. Vidya is there. Isha Parik and Vidya, why aren't you all communicating? Which loop is there similar to while? तो for maybe नहीं, do while। कौन सा है? do while। तो उसमें क्या करने का? पहले do कर देने का, मतलब अंदर तो आएगा ही, ये लाइन निकल जाएगी उससे। तो do मतलब it will go inside। But then
नहीं, इससे इशू आएगा कि फर्स्ट इटरेशन का इशू आएगा, फर्स्ट इटरेशन का, जो फर्स्ट इटरेशन में क्या प्रिंट करेगा उसका समस्या हो जाएगी, बिकॉज यहाँ पर n का वैल्यू कुछ नहीं मिल रहा है ना उसको, यहाँ पर n का वैल्यू कुछ नहीं मिल रहा है। अगर मैं इसको पहले कर दूं तो ओके, अगर ऐसा कर देते अपन, अगर मैं ऐसा कर दूं तो क्या होगा, डू अंदर जाएगा, fn डॉट रीड, फर्स्ट कैरेक्टर क्या मिलेगा उसको, कैपिटल N, उसको कन्वर्ट करेगा वो ASCII में, CH में, वो डिस्प्ले हो जाएगा, कैपिटल N इज नॉट इक्वल टू -1, यस ऊपर जाएगा डू N। ओके, लेट्स ट्राई दिस। एक ही बार हो गया ना ये लाइन, तो लेट्स ट्राई दिस, होप दिस शुड रन। सेव किया, क्या बोल रहा है, ओके, डू व्हाइल ऑलवेज एंड्स विद अ सेमीकोलन, डू व्हाइल ऑलवेज एंड्स विद अ, याद रखना है इस बात को। कंपाइल हुआ, रन भी हुआ क्या, सर वो पुणे के आगे उसने एंड ऑफ फाइल का एक उसने गार्बेज वैल्यू प्रिंट कर दिया है। क्या कर दिया उसने, एंड ऑफ फाइल को भी उसने प्रिंट कर दिया है। क्या किया उसने, एंड ऑफ फाइल को भी रीड किया, उसको भी प्रिंट कर दिया। तो सर अगर हम वो नहीं लिखे तो फिर अपने को एक इफ डालना पड़ेगा, फिर इफ डालना पड़ेगा। If n is not equal to -1, then print the ch. आया? तो उतना लॉजिक लगाना पड़ेगा। ओके, अगर अभी आपको स्ट्रिंग को रिवर्स करना है तो इसको रिवर्स डिस्प्ले करना है तो कैसे करेंगे, इसको रिवर्स करना है, रिवर्स द स्ट्रिंग, तो व्हाट विल यू डू, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले एक स्ट्रिंग लेंगे, स्ट्रिंग, उसमें इसको ऐड करते जाएंगे। क्या करते जाएंगे, तो फाइल से एक कैरेक्टर रीड करेंगे और स्ट्रिंग में ऐड करेंगे। तो स्ट्रिंग जो है ना, स्ट्रिंग वो पहले एम्प्टी होगी, पहले क्या होगी वो, तो अगर फाइल के अंदर वाडिया है तो पहले हम क्या रीड करेंगे, फर्स्ट रीड में क्या रीड करेंगे, W लाके इस एम्प्टी में ऐड कर देंगे, एम्प्टी प्लस W इज W। फिर नेक्स्ट क्या रीड करेंगे, A, W प्लस A इज WA। हाँ, तो ऐसे क्या कर, एक एक कैरेक्टर लेंगे और स्ट्रिंग में ऐड करते जाएंगे, तो वो हो जाएंगे WA। फिर थर्ड इटरेशन में क्या हो जाएगा, थर्ड इटरेशन में और फोर्थ इटरेशन में WADI और फिफ्थ इटरेशन में WADIA। ओके, तो पहले ये स्ट्रिंग का एड्रेस होगा 1000, पहले स्ट्रिंग का एड्रेस क्या होगा 1000। फिर दूसरे इसमें जब वो कॉन्कैट होगा तो एड्रेस बदल जाएगा, तो हो जाएगा 1000 2000 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बिकॉज वो वहीं के वहीं ऐड नहीं होगा, वो नए एड्रेस पे एडिशन करेगा। थर्ड इटरेशन में कितना हो जाएगा एड्रेस 3000, फोर्थ इटरेशन में 4000, फिफ्थ इटरेशन में 6 इटरेशन में 6000। तो अगर इस फाइल के अंदर 1 लाख कैरेक्टर्स हो, क्या हो 1 लाख, तो कितने बार एड्रेस बदलेगा ये 1 लाख टाइम। तो ये स्पीड फास्ट करेगा कि स्लो करेगा, स्लो करेगा। तो ये काम करता है स्ट्रिंग क्लास। कौन सा काम करता है ये, स्ट्रिंग क्लास। तो इसके लिए उसका ऑल्टरनेट है स्ट्रिंग बफर। क्या है इसका ऑल्टरनेटिव, स्ट्रिंग बफर।
स्ट्रिंग बफर क्या करेगा, वहीं के वहीं ऐड करते जाएगा, डबल कोड भी 1000 एड्रेस पे. What string buffer will do is all these modification will be taken place at the very same address, at the very same address. ये फर्क है string buffer में. तो ये भी कहाँ होगा, ये सब कहाँ चेंज होंगे, 1000 में ही होगा, 1000 पे. तो अगर 1,00,000 कैरेक्टर्स रहेंगे तो अगर 1,00,000 कैरेक्टर्स रहेंगे फाइल में तो 1000 पे ही रहेगा. 1000. तो स्पीड फास्ट होगा कि स्लो होगा, फास्ट होगा. ठीक है. तो इसको बोलते हैं इम्यूटेबल प्रॉपर्टी ऑफ जावा. क्या बोलते हैं इसको, और स्ट्रिंग इज म्यूटेबल. स्ट्रिंग क्या है, ओके, स्ट्रिंग इज इम्यूटेबल. सॉरी, स्ट्रिंग क्या है, इम्यूट, मतलब स्ट्रिंग चेंज नहीं होती. स्ट्रिंग क्या है, इम्यूटेबल है. वो एड्रेस कभी चेंज नहीं होगा, जो चेंज होगा वो नेक्स्ट एड्रेस पे होगा. और स्ट्रिंग बफर क्या है, म्यूटेबल है. तो मैं क्या यूज करूँ यहाँ पर, स्ट्रिंग यूज करूँ, स्ट्रिंग बफर यूज करूँ, स्ट्रिंग बफर. ओके. इसका फंक्शन है कॉनकैट. फंक्शन क्या है इसका, कॉनकैट. और इसका फंक्शन है अपेंड. इसका फंक्शन क्या है, अपेंड. तो अभी हम लोग स्ट्रिंग बफर यूज करेंगे, ठीक है. तो फाइल से रीड करेंगे और स्ट्रिंग बफर के ऑब्जेक्ट में डाल देंगे. तो मैं स्ट्रिंग बफर का एक ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ, दिख रहा है तुम लोगों को, क्या नाम बनाया उसका, ऑब्जेक्ट का नाम क्या दिया मैंने, स्ट्रिंग बफर. ऑब्जेक्ट का नाम क्या है, स्ट्रिंग बफर के ऑब्जेक्ट का नाम क्या दिया है, डेटा. ब्यूटीफुल, ठीक है. तो अभी हम जाएंगे, डू करेंगे, रीड करेंगे, कन्वर्ट करेंगे एन को, और एन को किस में ऐड करेंगे अभी, डेटा में. ठीक है. तो अपेंड कर रहा हूं मैं. हाँ, तो जब मेरा लूप खत्म हो जाएगा, तो जब अगर मेरा लूप खत्म हो जाएगा तो उसको यहाँ डिस्प्ले करने की जरूरत नहीं है, यहाँ डिस्प्ले करने की जरूरत नहीं है. तो मैं यहाँ ऐसा कर दूंगा, यहाँ कब अपेंड करेंगे हम लोग, जब n का वैल्यू क्या होगा, -1 नहीं चाहिए, क्योंकि मुझे लास्ट वाला कैरेक्टर अपेंड नहीं करना है, ठीक है. आफ्टर द लूप आई कम, after the loop I will come and I will display what, डेटा. yes, correct, क्या बात. तो ये हो जाएगा कौन से ऑर्डर में, सीधे वाले ऑर्डर में. और रिवर्स करने का रहेगा तो डेटा को रिवर्स कर दो. प्रोग्राम का नाम क्या दिया है, फाइल रिवर्स. इसको सेव किया, .java, ठीक है. तो now when I display the data, what will it display, और अगर मुझे उसको रिवर्स करना होगा, रिवर्स, तो क्या करूंगा, मैं एक फॉर लूप लगाऊंगा. इंटीजर आई शुरू कहां से होगा, डेटा के लेंथ से, डेटा के लेंथ. रिवर्स करना है ना. हाँ सर. तो लेंथ के लेंथ -1, अगर स्ट्रिंग में राज है, स्ट्रिंग में क्या है, स्ट्रिंग में क्या है, तो राज आर कौन से इंडेक्स पे है, और ए और जे, तो लेंथ कितना है स्ट्रिंग का, लेंथ राज में कितने कैरेक्टर्स है, तो आई वॉन्ट टू स्टार्ट माई लूप फ्रॉम 3 और 2. द लूप विल स्टार्ट फ्रॉम लेंथ -1. कहां तक जाएगा वो आई, जब तक ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है. और क्या करेगा वो आई, और क्या डिस्प्ले करेंगे हम लोग,
कैर एट एक फंक्शन है, क्या फंक्शन है? कैरेट। कौन से इंडेक्स? कैरेक्टर एट इंडेक्स आई, तो पहले वो उल्टा रिवर्स डिस्प्ले कर देगा उसको। लेट्स ट्राई दिस। Yes guys, let's run this code. दिख रहा है ब्लैक स्क्रीन? हाँ सर। जावा सी क्या नाम था? फाइल रिवर्स। कंपाइल हुआ? हाँ हाँ सर। जावा से। क्या है आउटपुट दिख रहा है? हाँ। उल्टा दिख रहा है क्या? पुणे का ENUP उल्टा उल्टा ऐसे ऐसे क्यों आ रहा है ये? क्योंकि मैंने क्या ऐड कर दिया मैंने एक्स्ट्रा इधर। क्या है? प्रिंट। I should have written only print. लाइन निकाल देना चाहिए था। Now again let's compile it. आया रिवर्स होके? दिख रहा? Yes or no? Yes sir. ओके अभी हमको अगर एक फाइल से रीड करके दूसरे फाइल में डालना है तो रीड वन फाइल एंड राइट टू अनदर फाइल। तो ओके इसको रीड करना है और उसके कैरेक्टर्स को इन्वर्ट करना है, कैपिटल को स्मॉल करना है, स्मॉल को कैपिटल करना है। तो विल कॉपी पेस्ट द फर्स्ट प्रोग्राम। क्या टास्क क्या दिया है मैंने? टास्क क्या दिया है? स्मॉल को कैपिटल, कैपिटल को स्मॉल। तो यहाँ तक आ गया, ठीक है। तो अभी ये कैरेक्टर में क्या है? कैपिटल एन है क्या स्मॉल एन है? स्मॉल है। पहले तो कैपिटल है ना भाई, नेस वाड़े का एन कैपिटल है क्या स्मॉल है? तो अभी डिस्प्ले करते वक्त स्मॉल करूं क्या कैपिटल करूं? स्मॉल। तो अभी तो उसको अभी हम रिवर्स कर देंगे। डिस्प्ले करते वक्त वी विल नॉट डिस्प्ले इट लाइक दिस, वी विल फर्स्ट चेक। पहले ये इफ सिंगल लाइन था, इसके लिए ब्रैकेट्स नहीं थे। अभी ये इफ में मल्टीपल लाइंस है तो ब्रैकेट्स आ गए। तो क्या चेक करेंगे? इफ एक कैरेक्टर रैपर क्लास है। कैरेक्टर क्या है? रैपर क्लास। उसका एक फंक्शन है इज अपर केस। क्या है? इज अपर केस। तो अगर CH अपर केस है तो क्या करने का? क्या डिस्प्ले करने का? उसको केस कन्वर्ट करना ना लोअर को। तो कन्वर्ट करने के लिए फंक्शन है टू। क्या है? तो डिस्प्ले करते हो क्या डिस्प्ले करो? टू लोअर केस। और एल्स व्हेन विल इट गो इनटू एल्स? व्हेन इट विल बी इन लोअर केस। एल्स में कब जाएगा? एल्स में अगर अपर केस में रहेगा तो इफ में जाएगा ना। हाँ। और व्हेन विल इट गो इनटू एल्स? जब लोअर केस में रहेगा तो क्या करना है? कन्वर्ट इसको अपर पे करना है। समझ में आ रहा है ये? तो पहले ये इफ सिंगल लाइन था तो ब्रैकेट्स नहीं थे। अभी ये इफ मल्टीपल लाइन है तो ब्रैकेट्स डाल दिया मैंने। तो अगर ये इफ ट्रू हुआ तो इसमें जाएगा, वरना इसमें जाएगा। इसको क्या बोलेंगे हम? फाइल डेमो था ना ये। फाइल कैरेक्टर, क्या बोलेंगे? फाइल कैरेक्टर, कैरेक्टर इन्वर्ट। कैरेक्टर्स को इन्वर्ट करना है। सेव किया इसको भी एंड लेट्स ट्राई टू कंपाइल दिस नाउ। उसी फोल्डर में ना, चलो नया बनाएंगे। Are you all understanding was file handling? तो क्या था? जावा सी फाइल कैरेक्टर इन्वर्ट डॉट जावा। क्या बोल रहा है ये? इफ के बाद हो गया, दो ब्रैकेट चाहिए थे। इफ के बाद दो ब्रैकेट चाहिए थे बता रहा है वो। हमने एक ही ब्रैकेट क्लोज किया है। यहाँ पर इफ के बाद ये ब्रैकेट क्लोज हो गया ना, ये ब्रैकेट क्लोज नहीं हुआ इधर वाला। सही है? हाँ सर।
कंपाइल हुआ. हाँ. एंड हियर आल्सो am I using print ln क्या है? प्रिंट यूज कर रहे हैं ना. हाँ, प्रिंट यूज कर रहे हैं. प्रिंट है तो ln यूज नहीं कर रहे ना, प्रिंट यूज कर रहे हैं. तो ठीक है. तो जावा सी फाइल कैरेक्टर इन्वर्ट डॉट जावा कंपाइल हो गया. और रन करते वक्त जावा फाइल कैरेक्टर इन्वर्ट एंटर किया. क्या दिख रहा है? क्या n बिकम्स. हेलो. नहीं सर, नहीं दिख रहा है, सिर्फ वो ग्रे बॉक्स दिख रहा है. अभी हाँ, अब दिख रहा है सर. कैपिटल N बिकम्स स्मॉल एन. और ई एस एस वॉज छोटा तो बिकम्स बिग है ना. कैपिटल एस. समझ में आ रहा है क्या? हाँ सर. और जहां पर स्पेस है, जहां पर स्पेस उधर डाल दो एस्ट्रिक. क्या डाल दो? कौन है ये? ईशा पारेख है ये. रात को सोती नहीं ईशा पारेख. एल्स इफ इस स्पेस क्या बोलेंगे उसको? तो क्या उसकी जगह पे क्या डालना है? तो अगर वो स्पेस कैर है तो एस्ट्रिक प्रिंट कर दो. तो अभी मैं कंपाइल कर रहा हूं इसको वापस. क्या बोला ये? स्पेस कैर क्या? इफ इट इज अ स्पेस. हाँ वही, सॉरी गलती हो गया. स्पेस क्या है? इट इज इफ स्पेस कैर. हाँ तो वो सेव किया, कंपाइल किए, कंपाइल हुआ, आया, दिख रहा है. तो ऐसे आप लोग इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं. समझ में आया? नहीं समझ में आया? चलो वेरी गुड. आई विल शेयर दिस प्रोग्राम, प्रैक्टिस देम. ओके बाय. टेक केयर गाइस. सर बस वीडियो अपलोड कर दो. कर रहा हूँ अभी कर रहा हूँ.